Recently, a young doctor, just 32 years old, jumped off from the Atal Setu bridge. A doctor, a healer, who was trained to save lives, ended up losing his own. He understood the brain, the body, the science, yet he couldn't escape the weight of his own emotional pain. Let me tell you something. This is not a rare story anymore. It has become disturbingly very common. Someone recently asked me, she said, ये तो डॉक्टर थे, डॉक्टर्स को तो सब पता होता है, what is brain, brain power, everything, what is stress, anxiety, everything. So how come he committed suicide? Don't they know how the brain works? My answer is very simple. Yes, they do. They have the knowledge. But the knowledge doesn't equal mental strength. किसी चीज़ के बारे में नॉलेज होना अपनी जगह है और उन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करना एक अलग बात है. तो डॉक्टर्स, प्रोफेशनल्स, स्टूडेंट्स, CEOs, they break too because emotions doesn't care who you are. Emotions doesn't care what is your degree, what is your profession, what is your designation, or what kind of knowledge you hold. Maybe you're listening to this video and thinking, I'm okay. But hey, are you really? Also, do you know someone who is withdrawing, who is changing, becoming distant, and smiling less, talking less, laughing less, दुनिया से आइसोलेटेड फील करते हैं? कोई जो ग्रेजुअली अपने नॉर्मल रूटीन से बहुत ही नेगेटिव, बहुत अलग बिहेव कर रहे हो, कोई जो हंसना, बोलना, स्माइल करना या लोगों में घुलना मिलना पूरी तरह से भूल चुका हो या खुद को इन सारी चीज़ों से दूर रख रहा हो. अगर आप ऐसे किसी को जानते हैं तो लेट मी टेल यू, दीज आर नॉट मूड स्विंग्स, दे आर द रेड फ्लैग्स. एंड मोस्ट पीपल, they don't know how to express even if they are screaming inside. अंदर चीखें निकल रही हो फिर भी कई ऐसे लोग हैं जिन्हें बोलना आता नहीं है, जिन्हें शेयर करना नहीं आता है. This is an alarming situation for all of them. And interestingly, you know what? We live in the world where we spend thousands of rupees on phones, dinners, clothes, all kind of shopping, but hesitate to invest even a fraction in our own mind. देखा होगा आपने, कोई ड्रेस पसंद आ गई, हमने तुरंत खरीद लिया. कोई फ़ोन पसंद आ गया, अपग्रेडेड वर्जन है, वो तुरंत ले लिया. We spend randomly on all these things. पर अगर खुद के दिमाग की बात आई, खुद के लाइफ की अगर बात आती है, खुद के सोच की अगर बात आती है, तो हम खुद को पीछे खींच लेते हैं. ये क्यों होता है? You know why? Because somewhere society has told us people who seek help of coaches and therapists, they are weak. Society has told us it's shameful to even think that you need some kind of expert help for your own mind, for mindset. But let me tell you, dil se, with love, with certainty, the strongest people are the ones who ask for help, who say, I need guidance, who can take me out of this darkness. Someone who says, I deserve to heal. जब ये बात किसी के दिमाग में आती है कि मुझे इस पॉइंट पे किसी थेरेपिस्ट की ज़रूरत है, किसी कोच की ज़रूरत है, मुझे इस डार्कनेस से बाहर निकलना है, कोई मुझे गाइड करे, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है समझ में नहीं आ रहा है, इसका मतलब वो इंसान सेल्फ अवेयर है. उस इंसान को पता है उसके अंदर क्या चल रहा है, व्हाट हैज टू बी रिमूव्ड. ऐसे लोग दे आर मोर स्ट्रॉन्गर देन अदर्स जो समझते हैं हमें बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, यानी जरूरत होने के बावजूद जो समझते हैं हमें जरूरत नहीं है, उन लोगों से ये लोग ज्यादा स्ट्रांग होते हैं. बट टॉकिंग अबाउट आवर सोसाइटी इन्हीं लोगों पे हंसती है या सोचती है क्या जरूरत है, 2-3 किताबें पढ़ ली, अपने आप माइंड सीधा हो जाएगा, अपने आप माइंड से ठीक हो जाएगा. थिंक ओवर इट. एज अ लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन कोच एंड अ साइकोथेरेपिस्ट, आई डोंट जस्ट हैंड आउट द एडवाइस, I walk with you. We then dive deep
into your patterns, into your pains, into those untold stories which are still stored in your subconscious mind. बचपन से लेके अभी तक इतने सारे इवेंट्स छोटे मोटे होते हैं जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में घर कर जाते हैं। तो हम साथ मिलके उन सारी स्टोरीज को ढूंढते हैं ताकि उन्हें जड़ से उखाड़ बाहर फेंके। उनका जो इम्पैक्ट आया है, जो नेगेटिव इम्पैक्ट है, उसे हम इरेज आउट कर पाए। हम मिलके आपका जो पेन है, जो आपके पैटर्न्स है, अनवांटेड पैटर्न्स, उन पे वर्क करते हैं। We gradually uncover the subconscious blocks, the emotional wounds, and those unspoken fears. When I say unspoken fears, कई बार ऐसे देखा गया है लोगों में किसी चीज़ का डर होता है, पर वो किसी से उस बारे में बात नहीं करते। किसी और से क्या, वो खुद से भी इस बारे में बात नहीं करते। और वो डर, वो छोटी मोटी चीज़ें, वो इतना स्ट्रॉन्ग पुल क्रिएट करती है, हमें पीछे ही खींचते चली जाती है। दे डोंट लेट अस प्रोग्रेस इन आवर लाइव्स। वी टुगेदर वर्क ऑन दोस। वी रिवायर, वी हील टुगेदर। इट्स नॉट मैजिक, definitely it's not overnight, but it's real and it works. To anyone listening, whether you are a doctor, parent, teacher, leader or student, remember you have the permission to pause, to breathe, to reach out to someone. Your family background or your profession or your designation or your knowledge should not stop you from reaching out to someone. This is not about the society, but this is about you. This is about your own mental health. Please do not wait to reach to the rock bottom जब तक हाथ से सारी चीजें निकल जाए. Don't do that. It's never late. When you find out that you are in some dark area, you want to come out of that, reach out for help. Because your life is worth fighting for. It's not weak to ask for help. It's not shameful to feel lost. And it's never too late. And if you're watching this, अगर अभी आप ये देख रहे हो या सुन रहे हैं, and if you are feeling some kind of stir inside, a heaviness in your chest or a lump in your throat, that silent cry, जैसे ही आप इसे सुन रहे हो या देख रहे हो इस वीडियो को, एंड इफ यू आर फीलिंग समथिंग वेरी डिफरेंट, जी घबरा रहा है, धड़कनें बढ़ गई हैं, पसीना आ रहा है, यू आर नॉट फीलिंग गुड, ऐसे लग रहा है आप सांस नहीं ले पा रहे हो, या देयर इज सम काइंड ऑफ साइलेंट क्राई एज आई टोल्ड यू, डोंट वेट फॉर एनी काइंड ऑफ ब्रेक डाउन, इंस्टेड चूज द ब्रेक थ्रू एंड रीच आउट. This is Dr. Nirja and I help people heal not just what's visible but what's hidden. If you're going through something painful, if you're silently breaking, or if you're feeling just numb, come talk to me. Remember, you don't have to do this alone. थोड़ा वक्त निकाल के खुद को समझिए, खुद के अंदर आपके दिमाग में, आपके दिल में क्या चल रहा है उसे समझिए, लिख डालें. लिखना, राइटिंग इज अ वेरी गुड थिंग. When you go on writing, इतनी सारी चीज़ें निकल आती है जो आप कभी आपने सोची भी नहीं होगी, जो आपके अंदर, आपके जहन में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठी हुई है. सो राइट डाउन एवरीथिंग. अंडरस्टैंड कौन कौन सी इमोशंस आपको परेशान कर रहे हैं, वो भारीपन लग रहा है तो वो क्यों लग रहा है. एंड रीच आउट. मैं दोबारा कह रही हूँ, रीच आउट. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. यू डिजर्व सपोर्ट. एंड कोचिंग एंड थेरेपी, इससे सिर्फ सपोर्ट ही नहीं होता है, कई बार इससे ज़िंदगी के ऐसे नए और ब्यूटीफुल पहलू खुल जाते हैं जो कभी आपने सोचे भी नहीं होंगे. कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो आपको रोक रही थी, आपके ग्रोथ को रोक रही थी, या आपकी पर्सनालिटी को और ज़्यादा निखरने से रोक रही थी, वो सारी चीज़ें निकल के बाहर आती है जिस पे बाद में वर्क किया जाता है. सो हम इस इंसिडेंट से यही सीखे हैं, irrespective of whoever you are. At first you are a human being. तो जब आप इंसान हैं तो इमोशंस होंगे. इमोशंस को अगर हैंडल नहीं कर पाए तो वो अपनी तरह से आपको हैंडल करना शुरू करेंगे.
और उसी के बाद उन इमोशंस में बह के हम ऐसे आड़े टेढ़े कदम उठाते हैं, या फिर हम ऐसे कुछ रिएक्ट करना शुरू करते हैं कि जो हमें अपना मानते हैं हम सारा गुस्सा उन्हीं पे उतार देते हैं, जो हमें अपना मानते हैं हम उन्हीं के साथ गलत व्यवहार करना शुरू करते हैं, या हम इस तरह से बिहेव करना शुरू करते हैं जो कि उस वक्त के लिए, उस समय के लिए सही नहीं थे। अगर उस समय आपके पास वैलिड पॉइंट्स भी क्यों ना हो, सही वक्त क्यों ना हो, पर सही वक्त में अगर आप सही पॉइंट्स कहते हैं पर कहने का तरीका गलत है, इमोशंस में बह के कहते हैं, तो वही सिचुएशन जो आपके पॉजिटिव या आपके साइड में होनी थी वो पूरी की पूरी पलट जाएगी। और उस सिचुएशन में कब आप घेरे जाएंगे, कब नेगेटिव चीज़ें होने लगेगी, आपको पता नहीं चलेगा, फिर वो आपके पर्सनल लाइफ में हो या प्रोफेशनल लाइफ में। तो ज़रूर याद रखें, रीच आउट। You can connect to me at reinventwithnirja.com for more help. Until next time, you take care of yourself, take care of your mind, take care of each other, and stay happy. Thank you.